वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदां श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं विदं तं साजीवम् साद्वैतं सद्गुरुं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं साधना श्री विशाखां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशोत्तमेश्च कृपा सिंधु वैवाच पतितानां पावनभयो वैष्णवभयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Narayanam Namaskirti. Naram, the all, I think, 3 chapters of Katha we tried to do in one day. But whatever we could get out of it, is good enough. Okay, so, but today is another great day also. We have the Govardhana Puja. So, this was a day in which Lord Krishna managed to convince everybody that it is Govardhan who should be praised too and not Lord Indra. And so why did he stop praise of Lord Indra and he said we pray to Govardhana? Any ideas? Fear. It became a parampara out of fear. If you don't do those pujas to Indra. Yeah, that's one reason. The Lord was saying that it is Govardhan which is giving us all the stuff, and
because they were from the Krisi family, the Kisan. So it was only appropriate for them to pray to Govardhan. And then also the other side, Indra was getting bit, like puffed up. So and according to the Lord, it is the duty of all the devatas to give everybody's quota as it is, and not that somebody gives you a bribe and then you give that person more. Okay, so lot of things the Lord was teaching. We have done this katha so many times, and today we will not be doing that. We have appeared for Ram Katha today, but it's actually was a lot of things the Lord tried to prove out of the Govardhana Katha, and like what Indra did, but eventually the Lord forgave Indra, Two devatas did obstructions while the Lord, there were more, but two main devatas, one was Indra, the other one was Brahma. So the Lord did not forgive Brahma. The reason the Acharyas give is because what Brahma did, he took the devotees away from the Lord. You see, what had Brahma done? He had taken it, right? तो जितने भी ग्वाल बाल थे, गैया भी सब भगवान की भक्त थी, तो सबको उठाकर ब्रह्मलोक लेकर के चले गए थे. तो ब्रह्मा जी आए थे, बड़ा भारी भगवान का प्रार्थना किया उसने और कहा मेरे को क्षमा कर दे, लेकिन कोई भी एक श्लोक में नहीं लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने तेरे को क्षमा कर दिया. तो द लॉर्ड इज ट्राइंग टू से ओवर हियर कि वो पर्सन जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर देता है, तो उसके लिए भगवान क्षमा नहीं करते. लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया. ऐसा क्यों हुआ? इंद्र को भगवान ने क्यों क्षमा कर दिया? Brahma also admitted. Brahma admitted, and also he's a devotee as well, but he can surrender to the Lord. All those reasons are okay. I am looking for another specific reason. All those reasons you're giving is okay. I will not disagree with them, but there is one very good reason, because what the Lord said, by doing all this, you brought everybody together. So all the devotees came together. You see, everybody was thinking that we want to be with Krishna all the time. So Krishna during the daytime would be with the Gwalwals, and bit of evening time, dinner time, he'll be with the mothers, and in the night time he'll be with the gopis. But they all wanted to sort of be together with the Lord, and how can that happen? So it is what Indra did, it happened, because everybody were together under the umbrella of Govardhana. So the Lord said to Indra, yeah, you are right, mate, because you actually brought everybody together. And during those 7 days and nights, everybody was just together, So that's how it goes. The Acharyas say, if you read the Acharyas' commentaries, they will say, two of them, two of the big devatas, great devatas did this. The Lord did not forgive Brahma. He may have forgiven Brahma, but the Acharyas, right? Acharyas always want to put something, to add weight to the Lord's devotion. तो इस तरह से ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया क्योंकि उसने भक्तों को he withdrew them from Krishna. Although Krishna became all the Gwal Bals and all, you know the story, right? Yeah. So, but it was Krishna. It was not the Gwal Bals. You see. So Krishna was away for 1 whole year with them. But in case of what Indra did, Krishna was with all the devotees day and night for 7 days and 7 nights. They were all together. Okay. So this is how it goes. Anyway, so two great events taking place during Kartik Mas, Damodar Mas. Right? So one where the Lord was tied with a rope, right? And then
Also the Govardhan Leela also takes place during this time. So anyway, moving away from that, coming back to Ram Katha. So coming back to Ram Katha में क्या हो रहा है? This is Sundarkand है. So we will continue with Sundarkand. तो and इस बात को हम लोग समझते हैं कि सुंदरकांड की जो कथा है पहुंच गए हनुमान जी का माता सीता के पास. Okay, so this is actually a progress of a devotee towards devotion. Okay, so devotion is represented by Mata Sita here. So eventually Hanuman is able to reach Mata Sita. Okay? But how do we know? What does one need to do to reach a pure devotional service? Okay, there's something stopping pure devotional service. कुछ है जो हमको स्टॉप करता है भगवान की शुद्ध भक्ति में जाने से. वो क्या है जो हमको स्टॉप करता है भगवान की शुद्ध भक्ति में जाने से? Eye changes. The eye. Eye changes. Yeah, eye is there also. Yeah. Somebody said Maya. Maya. Yeah, Maya, but how? Teen good. Teen gun. So the teen gun stops us from going there. So when Hanuman goes, so he goes beyond these three gunas. Okay, like we see Sinhika, we see Sursa. Okay, the Sursa is representative of Sattvic gun. So Sursa is representative of Sattvic gun. वो अपनी मुंह बहुत बड़ा करती है. She tries to stop Hanuman ji from going further. So what to do in a case like this? So Sattvic gun, sometimes people will say, oh, you are so great, you did so good Harinam, you did so good Katha. So how do we stop this? It becomes small. So what Hanuman does? He becomes very small, he goes into the mouth, comes out. So he crosses the Sattvic gun like that. Okay? Next he is able to cross the Tamasic gun is Sinhika. So this one is very, very dangerous. This is mode of ignorance. It has to be totally removed. So he what does he do? He kills Sinhika. Okay? So it has to be killed. Okay? You can't control. Sattvic gun control. Okay? Right? Tamasic gun control नहीं हो सकता. उसको पूरी तरह से remove करना है. ईर्ष्या इत्यादि ये सब represent also करती है जो तामसिक गुण होती. फिर उसके बाद में क्या हुआ? आखिरी में लंकनी. So Lankani is like a Rajasic gun. Okay, so this is mode of passion. My Lankani hu, like my Lankani hu. So I'm the boss here, and then Hanumanji made her feel that she's not the boss. Okay, the boss is only one, Lord Ramachandra. Okay, so this is where we are all trapped. This is where we are, just recapping, this is where we are all trapped. इस ट्रैप से हमको निकलना है. तो हनुमान जी बतलाते हैं, दिखलाते हैं, सिखलाते हैं कि किस तरह से इस ट्रैप से निकलना चाहिए. भगवान कृष्ण भी गीता में क्या बोलते हैं? 3 गुना ऊपर होगा अर्जुना. सो 3 गुण जो है उनसे हमको ऊपर उठना. So anyway, like this, the katha goes on and eventually Hanuman is with Mata Sita. There's another important event takes place before he actually reaches Mata Sita, and that is meeting with a very high level of devotee, which is Vibhishan. Okay, so this again tells us that we need the company of great devotees in order to reach Krishna. Okay, but eventually it is Krishna. So all these things are there. They are all sadhans. Don't lock yourself in this. Don't lock yourself in the parampara. Don't lock yourself in the sanstha. Don't Guru parampara and all this. Don't lock yourself there. These are just the sadhanas to cross. End of the day, man mana bhava mad bhakta. Krishna says, me and you only. That is the goal of life. This is what people forget. Sometimes being in a sanstha, ISKCON is a sanstha too, So sometimes we get trapped. We get trapped by personal agendas or whatever kind of agendas, so we forget this and we are so much trapped that Krishna goes very far away from us. We get trapped in all these things. So just be very, very careful. Antatva, it is only you and Krishna. Okay? Now,
Having said that, that doesn't mean you start ignoring everything else. No, you don't ignore. Okay? You still come through that, but don't get locked in it. Okay? You have to unlock yourself. So that in the end, last week मैंने आपको एक कथा सुनाया था कि एक इतना बड़ा व्यक्ति था, like he was supposed to get liberated, but in the end he was locked by looking at a tree which was having a very nice mango. So there was a very, very nice mango in the tree. He locked himself in there and he became a kida of the mango. Yam yam vyapi samrambhavam tajete ante karyo tad yuayati kaunteya sadasad bhava bhavet. So you get locked. Ant mein jo yaad karoge, you will lock yourself there. So you only have to lock yourself with Krishna and no one else. You get what I'm saying? Yeah. Okay, so that should be the end product. Okay? We have such a nice group, everybody sings nice and whatever over here. Okay, this is only like a sadhana. We're not going to lock ourselves here. We have to free ourselves. We've got to become free. Otherwise, once this life is gone, you can't achieve Krishna. But Krishna is very merciful. He says, I will give you a chance again. मैं फिर से आपको मौका दूंगा. But we don't live like that, Because Krishna, remember, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ कोई कारण से छूट गया तो he'll come and help. Because he says, my devotee never perishes. Okay, but let's not try to do that. Okay, our aim should be to get out. So Hanumanji here is eventually with Mata Sita. He's reached, he's crossed all the barriers and he's with bhakti, And then Hanuman here, when Mata Sita और हनुमान जी के बीच में जब बात हो रहा है, तो माता हम लोग वहाँ पर कथा को रोके थे जहाँ पर हनुमान जी से माता सीता बात करती है कि जितने बानर सब तुम्हारे ही तरह के हैं, मतलब नन्हे नन्हे छोटे छोटे बानर हैं, और ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बानर क्या कर पाएंगे? तब हनुमान बोले नहीं, बोले मैं सीनियर कैटेगरी का हूँ. तो अपना विशाल रूप माता सीता को दिखाया, लेकिन दिखाने के बाद हनुमान जी ने रियलाइज किया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया. तुरंत फिर से अपने उसी रूप में चले गए. देखिए जब भक्त को ये होता है, so Hanuman actually gave a very nice formula, and the formula was, to fix our thoughts on the Lord. Okay, so doesn't matter what happens, we just fix our thoughts on the Lord. So किसी भी चीज से बचने के लिए, किसी भी चीज हो, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, इन सब चीज से बचने के लिए we just have to fix our thoughts on the Lord. This is the formula Hanuman ji has given. This is the formula हनुमान जी ने दिया. तो किसी भी तरह का डिजायर आ जाएगा, किसी भी तरह का लस्ट आ जाएगा, all you need to do is fix your thoughts on the Lord. Okay, so how do you fix your thoughts on the Lord? I gave you some methods. One is smaranam. So Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. This Smaranam is very, very important. This is what is going to work for you in the end. Okay? This is something that will definitely work for you in the end. Sometimes in the end the chanting might not work because you might not be able to chant. Who knows what is our, but with the subconscious mind, the Smaran, if you always do Smaran of the Roop, the Lila and all this of the Lord, this will imprint in the subconscious mind. And even if you are not able to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram, Ram, you'll still be able to recall. And that will make you go to the Lord. So all these various methods are given. We are concentrating more on the name chanting of Harinam, the name chanting of the Lord. Okay, but what I'm trying to say over here, we should try to concentrate on other parts of the bhakti which is given also. Don't forget, okay? And one may work for you in the end if something else doesn't work. We don't know. And sometimes there are cases where even very, very high level, very, very great devotees were not able to find a time amongst the devotees whereby everybody is chanting and you leave your body. A lot of people, it's not happened. I'm not naming them, but even some of these great people, it did not happen,
like this suddenly an accident, you are in a hospital, no one with you, then you just leave your body. There's no devotees there to chant for you, you see. Okay, so what's going to work for you? Smarna is going to work for you. Okay, that's why these first three are given. What does it say? Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. So Sravanam is important. Like at the moment you are doing Sravanam, you are listening. And then this should come like a photograph, inside you when you do Smarana. Okay? So if you make a habit, it will happen. So like when you are driving back over here, just think of what we have been talking about. Right? So these things will come. That's why Bhagavatam is really, really important, and Chaitanya Mahaprabhu put a lot of emphasis on listening to Bhagavatam. Our Sravanam, Kirtan is also very, very important. So these first three are actually forms the main basics of our bhakti too. Then other bhaktis come. Okay, other bhaktis are additional, the Archan, Bandhan and all these are additional kind of bhakti. I'm not saying don't do them, but the first three is really important. Also Chaitanya Mahaprabhu placed a lot of emphasis on that. So anyway, we were talking about the formula given by Hanumanji. Right? So this is the formula that one needs to take. और जब हनुमान जी ने बतलाया कि माता सीता से कथा जब हम लोग कर रहे थे कि राम जी को कुछ पता नहीं था, अगर राम जी को पता होता तो तुरंत आ जाते, और आ जाते ये सब लीला करेंगे, अभी भी तुम चिंता नहीं करो माता, है शुद्ध कपि सब तुम्हें समाना, माता सीता पूछ रही है। तो तब हनुमान जी अपने रूप को दिखाए थे, जो हमने कथा उस समय वर्णन किया था। और जब ऐसा होगा तो नारद आदि सब आकर के और क्या करेंगे, सब भगवान की लीला का गान करेंगे। वो लीला का गान करेगा, कोई उसको उतार करके पुराणों में लिख देगा, है जैसे नारद पुराण है, नारद की कई बात है, शिव पुराण में भी नारद की कथा का वर्णन है, नारद किस तरह से करते हैं, और राम कथा भी है, राम कथा में भी नारद आते हैं। तो इस तरह से तो चलिए आज की कथा में, चलो कथा सुने सब राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की। चलो कथा सुने सब राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की। चरमान तोड़े मेरी जाई, जय राम जय राम जय जय राम, तीनों पुरनार जगवाई, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा तुम्हें सब राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की। कार्तिक कपिला कुमार समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। जाने तिलक बलवाना, श्री राम जय राम जय जय राम। होए विजय परम संदेहा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि कपि प्रगट दीन निज देहा, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा सुने सब राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की, ये रामायण है तुम्हें कथा श्री राम की। कनक मधुरा हर कही
तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं अपने ही फॉर्मूला जो हनुमान जी ने दिया उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्या कहा कि कभी भी काम क्रोध लोभ इत्यादि कुछ भी आ जाए तो प्रभु का स्मरण करो, है प्रभु सुमिरन करो। सुमिरन स्मरण करना मतलब भगवान को याद करना, किसी भी तरह से भगवान को याद करना। आपका कोई बहुत ज्यादा बड़ाई करने लगे है तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, इट इज ओनली नेचुरल। ओके, तो उस समय बट आपको कैच करना है, इस बात को कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तभी आप भगवान को याद कर पाओगे, नहीं तो कहाँ भगवान को याद कर पाओगे। आप तो अपना अहंकार को याद करोगे, वो आए जो है हमको खा लेता है, द फॉल्स ईगो है, जो फॉल्स ईगो है जो आए है वही हमको खा लेता है। तो मतलब मैं यू सी दैट मैं इज द फॉल्स ईगो। वास्तव में है ही नहीं, किसको मारोगे, किसको हटाओगे, जो है ही नहीं उसको हटाओगे कैसे, इसलिए उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। तो ट्रू ईगो क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, so जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, that is the true ego. Okay, so if that ego comes, so you are Krishna das, right? So once you are Krishna das means you are nothing, right? So you are not boss somewhere, you are not nothing, not president anywhere. But unfortunately somebody who's a president, he thinks he is the president, he is the greatest person, he can, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, so he can do whatever he wants, this is just an example to illustrate, तो क्या होता है, वो ईगो आ जाता है, वो सबसे बड़ा ईगो आ जाता है। वो ईगो होता ही क्यों है? अब जैसे प्रेसिडेंट होने का ईगो होता ही क्यों है, या doesn't matter what, बॉस होने का ईगो होता ही क्यों है? Where is it coming from? What's the first phase which is there first before anything else can come? I am this body, yes. So I am this body. So as soon as you are the body, then all these problems start coming. That's why one needs to understand that you are not the body, but what are you? Mamansi Jivaloke Jivabhuta Sanatana. So we are part and parcel of Lord Krishna, as he says in Bhagavad Gita. Okay, so अब यहाँ पर हनुमान जी को क्या हुआ? हनुमान जी जब माता सीता ने पूछा, so हनुमान जी then what he does is, जब माता सीता बोले इतने पिल्ले पिल्ले बोले नन्हे मुन्ने बोले सब हैं, तो हनुमान जी बोले नहीं, सब नन्हे मुन्ने नहीं है, बोले मेरे को देखो मैं तो सिनिया हूँ। उसने ऐसा बोला नहीं, मैं थोड़ा उसमें जोड़ रहा हूँ to stress the point. तो मतलब उसने भी दिखाया अपना विशाल रूप, माता देखो माता, जैसे मैं हूँ ऐसे कई और भी हैं हमारे साथ में, जैसे मैं हूँ ऐसे कई और भी है। हनुमान जी तो पवन पुत्र है, दूसरा है जामवंत, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। जामवंत जो ये कब से है, मैंने बताया था जामवंत कैसे पैदा हुआ था ना, जब मधुकेटक को भगवान युद्ध कर रहे थे, तो ब्रह्मा बहुत घबरा गए थे, और ब्रह्मा ने इसे अपने आप को इसे करा, पसीना में बेया आ गया निकल करके, वो बेया निकल करके ब्रह्मा की दाढ़ी खींच रहा है, बोले मैं क्या करूं? ब्रह्मा बोले मेरे को नहीं मालूम मैं क्या करूं, मैं तेरे को क्या बताऊं क्या करना है? तो बोले फाइट देखो, वॉच दिस, तो बोले चिया करो, तो ये बोले नारायण 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 चिया कर रहा था। अब इसका प्रमोशन हो गया है, अब पहले चिया कर रहा था केवल, अब क्या करेगा, राम जी के साथ में युद्ध करेगा, और हमारे कन्हैया जब आएंगे तो और प्रमोशन हो जाएगा। कन्हैया के साथ में he will fight with him. Okay, so this is Jam. So मतलब हनुमान जी अपने दिखा करके बतला रहे हैं मेरे जैसे और भी हैं। तो एग्जांपल मैं एक और दे रहा हूँ कि जामन जैसे अंगद इत्यादि सब, ये सब भी है। सुग्रीव जो है तो सुग्रीव किसका पुत्र है? इंद्र नहीं, सूर्यदेव का पुत्र है। ये सूर्यदेव का पुत्र है। याद रहे कि कैसे एक समय में बतलाया था इनका उत्पत्ति हुआ था दोनों भाइयों का, वो सूर्यदेव का जो चलने वाला रथ चलन, खैर वहां पर नहीं जाते हैं, तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। सो मतलब कहने का कि हनुमान जी अपने आप को दिखा कर बतला मेरे जैसे बहुत है यार, तो सीता माता को बतला रहे हैं। तो अब सीता माता ने देखा, बोले अच्छा ठीक है बेटा, बस। तो हनुमान जी बोले, तो हनुमान जी ने भी सोचा
कि ये मैंने क्या कर दिया, तो अपना फॉर्मूला फिर से उसने अप्लाई किया और अपने आप को फिर लघु रूप में लेकर निकल गया। ये बड़ा रूप था ना, बड़ा रूप मतलब अहंकार है। कभी कभी कथा को एंजॉय करने के लिए लिटरली भी कथा को एंजॉय कीजिए, बट फिगरेटिव मतलब क्या है उसका वो भी थोड़ा देखें। तो बड़ा मतलब अहंकार है, तो फिर तुरंत अपने आप को छोटा कर लेना, मतलब अहंकार को खत्म कर लेना। बेसिकली क्या करना है, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। तो इस तरह से सुन माता नहीं बल बुद्धि विजुता। अब तुरंत हनुमान जी ने क्या कहा कि हे माता सुनिए कि ये हमारा कुछ नहीं है, नहीं बल बुद्धि, हमारा जो बल बुद्धि जो है ये सब विशाल बल बुद्धि जो हम सबके पास में, इसमें हमारा कुछ नहीं है। सी व्हाट हनुमान जी से, हमारा कुछ नहीं है। बोले क्या, प्रभु प्रताप तेहि गरुड़ रही है, ये सब क्या, प्रभु प्रताप। सो ही इज गिविंग द क्रेडिट टू द लॉर्ड। दिस इज व्हाट should, this is the humble nature that we should possess, है। बट हमारा तो जाना, कोई अगर बोल दे प्रभु क्या गाया आपने, अच्छा नेक्स्ट टाइम बोले और अच्छा गाया। so, ये हमारी बात है, लेकिन हनुमान जी हमको सिखला रहे हैं यहाँ पर कि ये सब प्रभु प्रताप है, ये भगवान की प्रताप, मतलब एनर्जी से सब हो रहा, नथिंग फ्रॉम अस। अगर भगवान चाहे तो एक चींटी को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को चींटी बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज। तो इस तरह से यहाँ पर सीता माता ने अब जब देखा तो हम लोग वहां पर रुक गए थे, ये तो रिकेप था। आगे बढ़ते हैं। सीता माता अब क्या उनको वरदान देना चाहती है, तो सीता माता अब यहाँ पर वरदान देना चाहती है हनुमान जी को। और मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। तो भक्ति और बल में सजे हुए हनुमान जी को देख करके माता सीता हनुमान जी को कुछ वरदान देना चाहती है। तो वरदान क्या दिया उसने, आशीष दीन राम प्रिय जाना है। तो भक्ति आपके ऊपर काम उसी समय करेगी जब आप कृष्ण प्रिय हो जाओगे, राम जी के प्रिय हो जाओगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क, दिस इज व्हाट इज टेलिंग अस। आशीष दीन राम प्रिय जाना है, अरे तो राम जी के प्रिय हैं, इसको तो कुछ देना चाहिए। दे भी तो क्या दे, तो माता सीता है, तो भक्ति स्वरूप सीता माता है, तो बहुत कुछ दे सकती है उसको और देती भी है। और 5 चीज उसको देती है, 5 ब्लेसिंग्स उसको देती है। सबसे पहला बल मतलब स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर कहती है क्या, होत तात बल सील निधाना है। सो से बल मीन्स स्ट्रेंथ है, तो सभी तरह का बल तुम्हारे मिल भी गया था, हनुमान को मिला भी है। उसके बाद उसके समान बलवान कोई है ही नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अर्जुन के रथ पर वही बैठे थे, तभी अर्जुन का रथ जो सही सलामत था, कपिध्वज है, श्लोक आई है कपिध्वज, फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता है, कपिध्वज। आज हम लोग बोल रहे थे, प्रभु आज बोल रहे थे। तो कपिध्वज मतलब यहाँ पर हनुमान जी का रिप्रेजेंटेशन है। हनुमान जी को तो अर्जुन ने इनवाइट किया था मेरे साथ मिलकर के युद्ध करना, बोले नहीं हमारा समय नहीं है। हनुमान जी बोले लेकिन मैं एक काम करूंगा, तुम्हारे रथ पर मैं सवार रहूंगा। नहीं तो भीष्म पितामह और कर्ण का मारा हुआ एक एक बाण अर्जुन का रथ सही सलामत नहीं बच सकता था। राम भी मौजूद थे उस पर, दोनों चीज था, राम भी थे और हनुमान भी थे, बल बुद्धि निदान हनुमान जी। तो इस तरह से फिर सील गुड वर्च्यूज सील है, तो ये सब आपको प्राप्त हो। फिर अजर, अब अजर हो जाओ, अजर जरा जरा व्याधि, व्याधि बोलते हैं डिजीज को, और जर बोलते हैं बुढ़ापा। ओ हाँ बुढ़ापा ना हो तो अजर है, अजर हो जाओ मतलब बुढ़ापा ना हो। और फिर अमर हो जाओ, मतलब live forever. Right? So like he's forever. As long as the universe is there, the Lord Hanuman is there. Goswami Tulsidas met him. Okay, this is no joke. Okay,
This is not a joke. Goswami Tulsidas actually met him. There are others who have met him too. You can also meet him. I told you once, जब किसी को बहुत अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो क्या बदलाएगा? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो आपका काम बनाएंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बहुत दूर नहीं, दे जस्ट लिव इन द नेक्स्ट वर्षा। ओके, हम लोग कहाँ पर है? भारत वर्ष। हनुमान जी कहाँ है? किम पुरुष वर्षा। सो वो किम पुरुष वर्ष आप नहीं देख सकते, लेकिन हनुमान की कृपा से आप उसको देख सकोगे। सो दिस इज हाउ पावरफुल लॉर्ड हनुमान इज। ओके, he is very very powerful, and Sita Mata makes him even more powerful. Why is Hanuman ji so powerful? He is, at the end of the day, he is devotee of Lord Ramachandra, and कोई ऐसा काम हनुमान जी ने नहीं किया जो राम के लिए ना हो। अपने लिए उसने कुछ नहीं किया कभी। He did everything for Ram only. That's why we say we become like Jivere Sarup. So he is a very good example of Jivere Sarup, Nitya Krishna Das. So this is a good representation. Hanuman ji is the best representation of that, because he never did anything in his life which was not for Ram ji. Okay? If you can show me, then great. But you will not be able to show me. I am so confident. That's why I am saying that. Okay? So, especially after he has met Lord Ramachandra. Even before, he would be doing anything which will be in relation to Lord Ramachandra. सुग्रीव से मित्रता उसने क्यों किया? क्योंकि वो जानता था राम जी वहां पर आएंगे। Okay? So, all these things, any part of Hanuman's life you take. Okay? So, he's the best example. तो इस तरह से 5 अजर अमर गुण निधि इज अ स्टोर हाउस ऑफ गुड क्वालिटीज। ओके, सो उसको बोलते हैं गुण निधि। निधि मतलब समुद्र है। सो सुंदर सुंदर गुण। सो ऑल दीज 5 ब्लेसिंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 5 तत्व, व्हिच इज व्हाट? वायु जल अग्नि, जिससे सबसे शरीर बना हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स दैट। आचार्यों का कहना है, जिसे भागवत के आचार्य होते हैं, भगवत गीता का आचार्य होते हैं, उसी तरह से रामचरित्र मानस के आचार्य हैं। तो रामचरित मानस के आचार्यों का कहना है कि दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 तत्व है। बट ये 5 तत्व ये जड़ है। जड़ है मतलब the earth itself जड़, वायु itself जड़, अग्नि itself जड़, इन सब से हमारा शरीर बना हुआ। तो कहने का प्रयास ये है कि इन सब चीजों से बना हुआ ये शरीर क्या है? जड़ है। तो ऐसे वरदान पाकर के खुशी होना चाहिए? नहीं, हनुमान जी खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? सब जड़ चीज मिला। अब जड़ कैसे चलता है? यौगिक लोग के जमाने में चले, प्राण चाहिए ना। 5 प्राण होती है, टुगेदर 5 प्राण है। प्राण वायु, उदान वायु। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन व्हाट ऑल दैट मीन्स, बट ये सब जब होता है तो शरीर चलती है। सो हाउ डू वी डिक्लेयर दैट समवन इज देयर? ये वायु जब डिप्लीट हो जाती है, जब खास करके जब प्राण वायु डिप्लीट हो जाता है, तब डिक्लेयर करते हैं डॉक्टर दैट वी आर डेड। कुछ कुछ वायु बच जाता है कभी कभी, मैं बतलाया हूँ। अचानक से हाथ ऐसे चल लगना है, वो सब किसी वायु पे डिपेंडेंट है। ये भागो भूत है। Because not all the wires has not depleted totally, because some take more time. Okay? So, yeah. बांध देते हैं। आंख जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है, दोनों पैर बांध दिया जाता है, सब बगल। सो ये सब चलती है। आंख भी बंद करने का कारण होता है ना। As soon as all these wires deplete, the eyes become very scary. It has to be closed. Sorry, don't want to scare you, but I'm just giving the reason क्यों बंद हो जाता है। मतलब ये हम लोग किस चीज पर बात कर रहे हैं? ये 5 चीज जो सब जड़ है, जब तक प्राण वायु ना हो। एंड प्राण वायु इज लॉर्ड रामचंद्र हिमसेल्फ फॉर हनुमान।
सो जितना चीज दिया गया कुछ भगवान से लेना देना नहीं है। ये बल भगवान से लेना, सील, अजर, अमर, गुण निधि। अमर होकर के मैं क्या करूंगा? जब तक राम नहीं है जीवन में, अमर होकर के क्या करोगे? और गुणों का भंडार हो जाए उसको लेकर के क्या करोगे? सो आशीष दीन, तो इस तरह से यहाँ पर मन संतोष सुनो, आशीष दीन होई तात बल बुद्धि निधान। तो ही इज जस्ट क्वाइट, वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हनुमान जी, एकदम स्टिल, ही इज स्टिल क्वाइट। बोले अजर अमर गुण निधि तो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे माता सीता ने कहा कि करहूं बहुत रघुनावक छोहू, मतलब कि राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत 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 कृपा करे। हनुमान जी नाचने लगे, उठकर घूमने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे मतलब ये ले लो 5 चीज दे दिया हनुमान जी, चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे बोला करहूं बहु रघुनावक, झूमने लगे, गाने लगे, करहूं कृपा प्रभु हस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, प्रेम में मगन हो लगे। और समझो नाच नाच कर गा रहे हैं, मन में गा रहे होंगे, मन में नाच कर, कोई तो नहीं लिखा है लेकिन फिर भी बार बार गायो से बार बार नए पद शीशा, बार बार माता जी को, सीता माता को अपने शीश नवाते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि अब कृत भयो मैं माता, है कि अब मैं कृतज्ञ हो गया कि हे माता, दिस ब्लेसिंग इज लाइक समथिंग अनफेलिंग, यू नो। So this is the blessing that Hanuman ji was waiting for. He was not waiting for anything else. It's not like us, you know, बल बुद्धि हो जाए ताकि हम अपना बड़ाई करें, बल बुद्धि हमको मिलेगा, लाओ लाओ दे दो, जितना दे दो। सीखना, यहाँ से सीख रहे हैं कि हनुमान जी को कुछ भी पसंद नहीं आया। क्योंकि कुछ नहीं पसंद आया, इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड रामचंद्र। इफ समथिंग इज नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड रामचंद्र, तो उससे हमको खुशी नहीं होनी चाहिए। सो अपना जीवन इस तरह से बनाएं कि हमारा जीवन ऐसा हो जो राममय हो जाए।
सो करो बहुत रघुनायक जो, तब हनुमान जी को प्रसन्नता हुई और तब हनुमान जी कह रहे हैं अब कृतक कृतक भयो मैं माता, आशीष तो अमोद विज्ञाता। तो इस तरह से हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया। और क्या कह दिया माता सीता ने हनुमान जी को? शुद्ध, शुद्ध मतलब पुत्र है, बेटा कह दिया, मतलब पुत्र हो गया। तो पुत्र हो गया, अब सीता माता का पुत्र हो गया। एक बार फिर हनुमान जी का जन्म हो गया। पहले जन्म हुआ था तो क्या हुआ था? हनुमान जी को बड़ा भूख लगा था, हैं? बाहर देखे बोले सूर्य देव लाल लाल फल बोले, हैं? मैं खा लेता हूँ। तो सूर्य को निकल गया था। तो ये कथा जाती है। फिर भूत ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग आकर के विनती किए, तब सूर्य को छोड़ा था। तो इसीलिए तो सूर्य बड़ा चौकस थे। ही वाज लिटिल बिट क्या बोलते केयरफुल हनुमान से, बोले ये लड़का से बच के रहना है, ये कुछ भी। और क्या हनुमान जी को किसी ने बतला दिया कि तू जा सूर्य को गुरु बना ले, तो और प्रॉब्लम हो गया है। तो हनुमान जी जब सूर्य को गुरु बनाने गए तो सूर्य जी बोले कैसे छुटकारा इससे पाऊं? तो सूर्य देवता ने क्या कहा? बोले आई एम ऑलवेज ऑन द मूव, बोले मैं तो चलता रहता हूँ, बोले हैं आधा इधर जब हमारा दिन होता है, फिर आधा और भूमंडला का, सो ही इज ऑलवेज ऑन द मूव। तो बोले मैं तो ऑल द टाइम ऑन द मूव होता हूँ, मैं कैसे तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ? तो हनुमान जी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। तब सूर्य बोले कैसे छुटकारा पाऊं? बोले नहीं तुम हमारे साथ साथ कैसे चलोगे? तुम हमारे साथ साथ चलोगे बोले तुम्हारा पीठ बोले हमारे आई विल बी लुकिंग एट योर बैक, बोले दिस इज मर्यादा नहीं है। सूर्य देव बोले बोले खास करके भक्त आगे आगे चल रहे हैं, मैं उसके पीछे पीछे पीठ देख करके चलूं? भक्त को तो फेस करना चाहिए ना, है पीठ के पीछे पीछे तो नहीं जाना चाहिए। तो बोले ठीक नहीं होगा। तो हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, बोले मैं पिछवाड़ा होकर के चलूंगा, बोले ना मतलब तुम ऐसे आओगे, मैं इधर से ऐसे से जाऊंगा, हैं? तब बोले सूर्यदेव बोले ऐसा भी ठीक नहीं, बोले ऐसे पिछवाड़ा बोले कहा थोड़ा चला जाता है, ये भी मर्यादा नहीं। हनुमान जी नहीं बोले पूरा मर्यादा है। बोले प्राणी को जब जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए गुरु की कृपा से, तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। अपना डायरेक्शन समझ में आ रही है? तो हमारा गुरु के संगत हो गए, डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। मतलब अभी हमारा डायरेक्शन कहाँ है? माया की ओर है। गुरु को शरणगत हो गए तो डायरेक्शन भगवान की ओर हो जाना चाहिए। और गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी ओर नहीं आपको चलाए, जो भगवान की ओर आपको चलाए। ऐसा कोई गुरु है जो अपनी ओर चला रहा है, तब तो वो तो गड़बड़ गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। असली गुरु वही है जो आपको भगवान की ओर भेजे। बहुत आजकल गुरु लोग होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपनी ओर चलवाते हैं, बड़ा अजब अजब काम करते हैं। हाथ तो बंद है, हाथ तो बंद है। खैर तो सूर्यदेव फिर अंत में तैयार हो गए और हनुमान जी उनके डिसाइपल बन गए और उनसे फिर विद्या प्राप्त करके और वहां से हनुमान जी चले। तो हनुमान जी को अंत में जब विद्या प्राप्त हो गया, बोले गुरु दक्षिणा में क्या दें? तब सूर्यदेव ने कहा कि मेरा पुत्र वहां पर है, उसका तुम ख्याल रखना। तो उनका पुत्र सुग्रीव, तो इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ में थे। तो खैर उस समय उनका जन्म हुआ था। अब जन्म हुआ, फिर से भूख लगा। हनुमान जी को दूसरा जन्म हो गया। माता सीता ने पुत्र कर दिया, उसको अब भूख लग गया। तो सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी जब जब जन्म होता है उसको भूख लग जाती है। तो उसको भूख लग गया। तो सीता माता कहती है अरे तुम रास्ते में आए, बोले कुछ मिला नहीं? बोले कुछ खाने को नहीं मिला? बोले खाने को नहीं मिला, बोले लेकिन खाने वाले बहुत मिले। खाने वाले कौन कौन मिले आप जानते हो? सुरसा थी, सिनिका थी, लंकनी, संपत्ति था, ऐसे पहले संपत्ति मिला था। सब खाने वाले बोले सब ज्यादा मिले थे। अरे मैया बोले और क्या मैं बतलाऊं? बोले सुरसा ने तो मेरे को खा ही लिया था। सीता माता बोले अच्छा खा लिया था, कहीं फिर क्या हुआ? वो तो बोले मैं अपने छोटा रूप करके बोले भीतर गया और बाहर निकल गया, नहीं तो बोले वो तो मेरे को बिल्कुल खा ही लिया था। बोले तो बोले अच्छा ठीक है, वो तो रास्ते में था। बोले लंका में? बोले नहीं, बोले लंका में तो बहुत अच्छे बोले सब खाते पीते घर के हैं, बोले ना। हनुमान जी बोले खाते पीते घर के नहीं, बोले पीते खाते घर के। दोनों में अंतर है ना, पीते खाते घर के।
तो बोले इसलिए मेरे को कहीं खाने को नहीं मिला। तो इस तरह से हनुमान जी माता सीता से कह रहे, सुन सुत करहु विपिन रखवारी, है मतलब कि यहाँ पर तुम जो फल खाने के लिए जाना चाहते हो, है हनुमान जी ने कहा मेरे को भूख लगी है, और बतला भी दिया कि क्या वो खाना चाहते हैं, कि लागी दे कि सुंदर फल रूखा, है बड़ा सुंदर सुंदर फल लगा हुआ है और मैं जा करके इन फल को खाना चाहता हूँ। तो सीता माता बोले सुनो, बोले इनको रखवाली करने वाले बोले परम सुबट रजनीचर भारी, है मतलब यहाँ पर रावण के जो रखवाली करने वाले बहुत यहाँ पर है, तो इसलिए तुम बहुत केयरफुली और जाकर के तुम फल को खाना। तो यहाँ पर माता सीता थिंकर भय माता मोहि नाही, हनुमान जी बोलते हैं कि इनका भय नहीं है, तुम उसके बारे में चिंता नहीं करो माता, उनसे मेरे को डर नहीं, मतलब रावण के जो रखवाले हैं उनसे मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। जो तुम सुख मानो मन माही, आपको अगर ये सुख लगे कि मैं जाकर खाऊं तो मैं जरूर जाकर के खाऊं, ये हनुमान जी माता सीता से खाते हैं। तो देखी विविध बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, तो जानकी माता ने कहा कि जाओ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भक्ति स्वरूप है माता सीता तो बड़ा सुंदर आज्ञा देती है, जाओ और किस तरह से फल को खाना। रघुपति चरण हृदय धरि, ओके, रघुपति चरण हृदय धरि तात मदर फल खाई, है मतलब राम जी को, सो रिमेंबर लॉर्ड रामचंद्र and then eat. So when you remember Lord Ramachandra and then you eat, whatever you are eating becomes prasad. Okay? So whatever you are eating becomes prasad अगर जो आप राम जी को याद करके खाओगे। तुम्ही निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्ही निवेदित भोजन करहीं, रामायण कहती है। यहाँ पर पूछा गया था कि किन के हृदय में राम जी विराजमान रहते हैं। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब गए थे राम जी, दूसरा कथा मैं सुनाने लगा। दिस इज लाइक a katha which is trying to support what we are trying to say here. वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब राम जी गए थे तो वाल्मीकि मुनि से आग्रह किया था कि हे वाल्मीकि मुनि, मैं कहाँ पर जाकर के बसूं, किस जगह पर। राम जी तो अपने रहने की जगह पूछ रहे थे, कहाँ मैं जाकर के और अपना घर बनाऊं, है। तो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया था। पूरी कथा है बड़ा सुंदर। सुनो राम अब कहूँ निकेता, बसो जहाँ सिया लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरिनाना, है बोले उनके हृदय में जाकर के पहला बदला है, इनके हृदय में जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसने अपने श्रवण मतलब कान को समुद्र के समान बना लिया है, और तुम्हारे कथा को अनेक नदी जैसे नहीं आ रही है समुद्र में जाकर के, और समुद्र का कुछ नहीं होता, इट डज नॉट ओवरफ्लो ऑफ कोर्स अनलेस देयर इज अ सुनामी। मैं कहीं पर कथा कर रहा था, एक बैठा हुआ था एक व्यक्ति, तो बोले प्रभु, बोले व्हाट अबाउट सुनामी, नो वी टॉकिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हियर, ओके, तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये ऐसे से ये स्टिल डजंट ओवरफ्लो, है। तो उसी तरह से अपना कान को बनाना है। हमारा कान तो घड़ी देख करके ओवरफ्लो हो जाए, 9 बज गया, ये प्रभु अभी ले चल रहा है, हमारा कान बहुत हाली ओवरफ्लो हो जाता है। तो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, पहली बात बताई। और फिर एक और बड़ा सुंदर बात बताओ, तो बोले तिनके हृदय बसो रघुराई, मतलब हे राम जी तुम जाकर के उनके हृदय में वास करो, है। और एक और बात बड़ा सुंदर बतलाते हैं, तो बोले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु ली नितनासा, है प्रभु प्रसाद सुभग सुवासा, सादर जासु ले, जो आपके प्रसाद का सुगंध नित्य रोज जिसके नाक में जाता हो। तो भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं व्हाटएवर इट इज, दाल भात है, तो उसमें तुलसी के पत्ता डालते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हैं, दिया भगवान को, फूल भगवान को अर्पित करते हैं, इसलिए फूल चढ़ा करके पास किया जाता है, उसका सुगंध लिया जाता है। तो प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु ले नितनासा, मतलब अपने नाक में लेता, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, जो भोजन करने से पहले what does he do? He offer to you and then eats.
Okay? Tinke hirde basor gurai. It's so nice. You see, it's not only Bhagavatam is nice. Ramcharitra is also very, very nice. If you understand properly, it is one of the nicest thing, This is my favorite, like when no one is there, when only I'm there, I don't need any audience, nothing. I just open up the Ramayana, I have the harmonia sitting in my puja room, everything all there, even the mic there, I just sing by myself and enjoy. Of course, singing for the Lord, doing it for the pleasure of the Lord. You don't even need any audience. You really don't need any audience. You're doing it for the satisfaction of the Lord. Okay? So this you can do like this. Right? So, and in the sloka from the Bhagavad Gita, which we are talking about from Ramayana, which sloka is from Bhagavad Gita goes with this? Yeah. जोर से बोलो यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुसि ददासि यद तपस्यसि तु कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम. So यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुसि ददासि यद मतलब करोषि means whatever you are doing, that takes care of everything. Whatever you are doing, the first line, the first part of the slok takes care of everyone. यद करोषि यद अश्नासि, जो खाते हो, जो दान देते हो, whatever, यद तपस्या, जो तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम. You do it as an offering to me. Okay? So you do it as an offering to me. So why do we do everything as an offering to Lord Krishna? What is the reason for offering it to Lord Krishna? Why don't we just eat it just like that? खाओ पेट ठोक के खाओ नहीं. पहले offering तब उसे प्राप्त करो. खाओ नहीं. Mercy of the Lord को प्राप्त करो. Why is that the case? ये शुभ फले एवं मोक्ष्यसि कर्म बंधना. Immediately in the next slok, Krishna says, you do this so that तुम बंधन में नहीं पड़ोगे. Because even for a little thing that you do, आप बंधन में पड़ जाते हो. मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि even by eating a fruit without offering to the Lord, आप बंधन में पड़ जाते हो. So therefore, everything, if you are, so this process of doing it, different sampradayas, they have different ways of doing. I don't have a problem with that, So sometimes when even you are restricted, you have a fruit and you don't have a proper place to offer, you don't have like a prayer place or something, you are somewhere down, like sometimes we are caught somewhere and then you have to eat, right? So you take an apple and then you say Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, 3 times, and then after that you eat, because then it's prasad. The name of the Lord has been inseminated in there. Okay, then it will become Subha Shubh Phalayeho. And then it's saying Subha Ashubh Phalayeho. Someone understand Sanskrit? What's it saying? Auspicious or inauspicious. Auspicious and both. Subh Ashubh Phalayeho. फल से आपका छुटकारा हो जाएगा. क्योंकि आप अच्छा में भी फंसते हो, बुरा में भी फंसते हो, दोनों में फंसते हो. So you may say, oh, I'm doing such nice work. I go to a Vidra ashram and I give them food. But if you give them food, you are giving them पाप. You get it? Okay? एक तो उनको पाप दे रहे हो और दूसरा अपने ऊपर आप फल बटोर रहे हो. So what do you need to give them? You got to give them prasad. Okay? So you offer it to the Lord and then you distribute. So that's why it's called prasadam distribution. Okay? So we also have named, I think I'm not very happy with the name that we are using in ISKCON. Food distribution is not very right, but I think to tell the world that we are giving you food, it has been used. Otherwise the word prasad should have been there, really. Because otherwise you say food distribution, food means food. Okay? So, but we are not distributing food, we are distributing prasad. Okay? So
See, just in a just one line. We are at the moment just discussing one line of Raghupati Charan Hriday Dhari Tat Madhur Phalkai. That is what we are discussing. एक लाइन केवल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतने देर से. इतना विशाल है रामचरितमानस. It is filled with knowledge. Okay? It is filled with knowledge. कहाँ से हम लोग बटोर लिए देखो. रामायण के एक और दूसरा सेक्शन से जाकर बटोर कर ला लिए. भगवत गीता से जाकर बटोर करके ला लिए. So it's all there. Depends what you are following. You know, like किसी को ज्ञान नहीं है तो कभी कभी कहा देते हैं कि oh you should be doing. I remember during my early days of ISKCON, early 2000, there were some devotees trying to tell me, I would meet them and say I am a preacher of Ramayana. Then they will go, रामायण नहीं, आपको भागवत करना चाहिए, आपको भगवत गीता. You know, like they didn't know what's in there. आपने कभी रामायण पढ़ा, आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा? This is called brainwashing. You know, so this is real brainwashing. Not understanding something and talking about it. Why you want to talk about something if you haven't even read about it? You know, so this is my saying. Please, before you talk about anything, you got to understand what's in there. Okay, so this is ये मधुरता है रामायण की. रामायण की मधुरता ये है, रामचरितमानस की मधुरता ये है. एक तो बड़ा सुंदर उसको गाया जाता है और दूसरा है क्या उसके अंदर. The content there. Thank you very much, Mataji, for changing it. Otherwise, today we were doing the Narak Katha here. In Bhagavatam, at the moment, we are doing the Narak Katha. You know, so we would have been doing the Narak Katha today. But that's also very, very nice. We sometimes take Narak, oh my God. You got to understand about that. So that how to get out of it is the thing. Okay. Anyway, so इस तरह से यहाँ पर माता सीता ने उनको आज्ञा दिया कि तेरे को क्या करना है, कि तुम राम जी को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाए. So I think we should move on now. Okay, so let's move on. Let's go further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
हनुमान जी महाराज की। तो इस तरह से अब हनुमान जी निकले, बड़ा जोर का भूख लगा है बेचारे को, क्योंकि सब रास्ते में खाने वाले मिले लेकिन खाना देने वाले कोई नहीं मिले उनको। तो अब फल खाना चाहते हैं, तो चले नाई सिर पटे बागा, तो रावण का बड़ा सुंदर गार्डन है, बाग है। तो हनुमान जी माता सीता को सिर नवा करके आशीर्वाद लेकर के और वहां से वो फल खाने के लिए चलते। तो फल खाई सी तोड़न तरुण तोड़न लागे, तो माता सीता ने उनको क्या बताया था, बोले जो नीचे नीचे गिरा हुआ फल रहेगा, बोले हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पेड़ हिला हिला कर गिरा रहे, तब जब पेड़ हिला रहे गिर जाए नीचे तो उठा करके खा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेड़ हिला हिला कर गिरा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बतलाया गया है। तो छलांग लगाते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़ छलांग लगाते हैं। तो वहां रावण के 2 रखवाले बैठे हुए थे, तो चल रहा था उनका मदिरा पान चल रहा था। एक ने अचानक बोले कोई बोले कूद रहा, बोले पेड़ से वहां कूद रहा, बोले क्या है, क्या कूद रहा, बोले तो दूसरा क्या कूद रहा, बोले बानर, बोले कूद रहा है, बानर कूद रहा। दूसरा पूरा कप में एकदम पी रहा है स्वाद ले लेकर, बोले अरे यार, बोले बानर ही तो है, बोले प्रॉब्लम क्या है, बोले बानर है। समझ रहे उसका मतलब है, जो अन्यों को छोटा समझे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बिगाड़ेंगे उसको। आपने छोटा सा, बानर ही तो है, क्या बानर है, तो इधर से उधर कूद रहा है। तो बोले पिए यार, चलाओ तुम यार। दूसरे राक्षस ने कहा यार बानर ही तो है, और दोनों खूब मदिरा पान कर रहे हैं। तो बोले फल ही तो तोड़ रहा है, बोले प्रॉब्लम क्या, फल तोड़ रहा है। तो पहले राक्षस ने कहा कि फल तोड़ रहा है खाना, बोले कुछ हम लोग अकाउंट बैलेंस कर लेंगे, कुछ रावण को बतला देंगे ना, चिड़िया उड़िया खाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर तो आगे वो क्या कर, अभी तो छलांग लगा रहे थे, फिर बोले देखते बोले ना, जो छलांग बोले ठीक है लगा दो बानर, फिर बोले फल खा लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पियो। तो वो पूरा चल रहा है, उनका पीना पूरा चल रहा है। तो मतलब 2 चीज पे छोड़ दिए, एक इधर से उधर छलांग लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। फल खा कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट बैलेंस कर लेंगे। तो फिर पकड़े दूसरा, बोले देखो देखो देखो, बोले प्रभु, बोले पेड़ उखाड़ रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो रावण को बताना पड़ेगा ना। तो पेड़ उखाड़ कर, पेड़ जब उखाड़ तो उठाकर फेंक रहे हैं, तो और सबको बुला लिए। अभी तो 2 थे, नशा सब उतर गया, सबका नशा भाग, दोनों का नशा भाग गया। अब बुला लिए और सबको। तो बताया गया रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, सबको बुला लिए जितने रखवारे थे। कछु मारी सी कछु जाए बुखार, तो कुछ को मार कर हनुमान जी गिरा दी। अरे पूरा जगह पर देखना, हनुमान जी ने गदा तो यूज ही नहीं किया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है उसके पास में गदा है ही नहीं, तो सबको मार रहे हैं, केवल उठाकर मार रहे, पेड़ उठा करके पटक रहे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गदा से मार रहे हैं। फिल्म में एडिशनल उसके हाथ में गदा पकड़ाई, कहीं नहीं लिखा। तो कछु मारे से कछु जाए पुकारे, तब अब भागी, अब भाग करके कहाँ गए, रावण के पास। नाथ एक आवा कपी भारी, बोले हे नाथ, रावण से बोले एक बहुत बड़ा कपी मतलब बंदर, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। आकर बोले क्या कर रहा है, बोले तुम्हारे अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, अरे बोले हमको तो मारा, हम लोग बच करके आए। तो खाई से फल और बिटक उठारा, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, पूरे सबको मार मार कर फल खा रहे हैं और उठाकर फेंक रहे हैं। कुछ बोले फल को पेड़ तोड़ रहे हैं, और हम जाते तो कितनों को मार दिया। बोले हम लोग बड़ा मुश्किल से स्वामी जी बोले बच करके आए। बोले तो सुनी रावण पटेव भटनाना, तीन देखहि गर्जन हनुमाना। तो रावण ने फिर अनेक योद्धाओं को भेजा, सब रजनीचर कपि संहारे,
गए पुकार कुछ अधमारे। तो फिर क्या किया, उन सबको भी मार करके हनुमान जी, अब थोड़ा लीला चल पड़ी है, अभी ज्ञान की बात चल रही थी, अब थोड़ा लीला चल रही है, तो ये हनुमान की लीला चल रही है। तो हनुमान की लीला भी देखो, अब ये राम जी के लिए ही है, वो आजमा रहे हैं कि कितने ताकतवर हैं और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, राम जी जब आएंगे तो क्या करेंगे। सो ही इज ट्राइंग टू डिस्कवर ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह से यहाँ पर फिर जब गए तो पुनि पटेहु तेहि अक्ष कुमारा, तो सब योद्धाओं को मार कर गिरा। तो रावण बोले, बेटा बोले तू जा, है अक्ष कुमार जो है ये रावण का पुत्र है, बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान पुत्र है। तो ये अक्षय कुमार को भेजा, चला संग ले सुभद अपारा, है मार ढेर सेना अपने साथ में लेकर के गया। और हनुमान जी ने जब देखा, आवत देख बिटप गई तजा, ताही निपति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी ने देखा कि रावण ने अपने पुत्र को भेजा, तो बड़ा जोर से धुनी की, और कछुक मारे से कछुक, जितने उसके साथ में आए थे सबको मार करके गिरा दिया। कछुक मिले से धूल इधर, धूल धूल में मिला दिया, पेड़ से उखाड़ कर पेड़ उसके ऊपर पटक रहे हैं, किसी के पत्थर से मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, उठा करके धूली में पटक रहे हैं, ये सब लिखा, ये सब लिखा हुआ है। तो प्रभु मरकट बल भूरी है, तो उसने अक्षय कुमार को भी मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। तब अब रावण के पास जब बात पहुंचा है, तो रावण तो बड़ा क्रोधित हुआ, और अपने बड़ा बेटा जो है जिसका नाम है इंद्रजीत, इंद्रजीत उनका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इंद्र को हरा दिया। उसका दूसरा नाम है मेघनाद, मेघनाद उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है? आप सब रोए होंगे, मैं भी रोया हूँ, लेकिन मेघनाद जब पैदा हुए उसने रोया नहीं, उसने क्या किया, मैं बादल की तरह गल जा। तो हनुमान रावण ने उनका तुरंत नाम करण संस्कार कर दिया। पंडित कितने बड़े, आपने पंडित रहा हो, सीधा उसका नामकरण कर दिया मेघनाद, उसका नाम सीधा रख दिया क्या, मेघनाद है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। सुनी सुत भगवान के दर्शना, ओ मोरे रामा, कति से मेघनाद बलवाना, ओ मोरे रामा, आजे जन सुत बल सुत ताई, ओ मोरे रामा, एक कपी का कन्हैयाई, ओ मोरे रामा, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। इस तरह से रावण ने जब देखा उसका एक पुत्र को मार दिया गया, तो सबसे बलवान पुत्र मेघनाथ, अब और कोई पुत्र नहीं, अब मैं स्वयं जाऊंगा। मेघनाथ कह रहे हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। चला मेघनाथ, चला
तो इस तरह से रावण ने जब सुना कि उसके पुत्र को, अक्षय कुमार को मार दिया गया, बड़ा सोच करने लगा रावण। तो उनका बड़ा पुत्र जो मेघनाथ, जिनका नाम इंद्रजीत भी है, तो इंद्रजीत अब यहाँ पर अतुलित श्रद्धा, यहाँ पर बड़ा सेना को लेकर के और चला। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, उनको बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि बंधु मतलब भाई का मृत्यु से उनको बहुत बहुत क्रोध आ रहा है, तो इसलिए बहुत क्रोधित है। और क्रोधित लोग जो होते खतरनाक होते, खास करके क्रोध में अगर कोई खतरनाक काम करने जा रहा है तो बड़ा गड़बड़ होता है, तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो एक क्रोधित है, और दूसरा क्रोधित क्यों है, इनको भाई को मारा गया है। तो कभी देख धरुन भट आवा, कटकटा गर्जा और धावा। तो हनुमान जी ने जब इसको देखा तो गर्जन करते हुए इनकी ओर बढ़ा है, बहुत जोर से गर्जन करते हुए हनुमान जी की ओर आवे। अति विशाल तरु एक अपार, पैर उखाड़ करके और उसके ऊपर छोड़ा। तो यहाँ पर मेघनाथ भी बतलाया जा रहा है कि बड़ा भारी योद्धा है। और यहाँ पर युद्ध किस तरह से हो रहा है बोले, जैसे दो हाथियों गजराज, दो गजराज लड़ रहे हैं, जो दो हाथी लड़ रहे हैं। मेघनाथ भी बड़ा बलवान थे। अरे देवता इंद्रजीत नाम उसका हो गया भाई, इंद्रजीत नाम ऐसे नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो इंद्रजीत नाम उनको इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को बंदी बना लिया था। तो इसलिए हनुमान जी के साथ में युद्ध हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक और एक बड़ा हाथी, दूसरी ओर से दूसरा बड़ा हाथी यहाँ पर लड़ा जा रहा है। तो इस तरह से मेघनाथ को हनुमान जी ने बिना रथ के कर दिया, बिना रथ के हो गए। बिना रथ के जब मेघनाथ हो गए तो वो क्या करने लगा, माया का युद्ध करने लगा। ये राक्षस जो होते थे मायावी होते थे, इनके पास में माया विद्या होती थी, अलोप हो जाना, अचानक से आकर के प्रकट हो जाना, इनविजिबल हो जाना। तो ये सब हनुमान जी चला देख रहे हैं क्या हो रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो देखते 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 हनुमान जी ने क्या किया, गदा ने मुट्ठी का मार चढ़ तर जाए, तो जाकर के उसको ये कस के घुसा मारा, घसा दिया, और कूद करके हनुमान जी बाहर है, कूद करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और ये यहाँ पर गिरा। तो तही एक क्षण मूर्छा जाए, तो एक क्षण के लिए मेघनाथ का क्या हुआ, लगभग में फेंट हो गया, मूर्छा होकर के गिर गया। फिर उठी बहुरी कीन बहु माया, आप उठ गया, अब तो माया की लड़ाई करने लगा, क्योंकि अब समझ गया कि सीधा साधा तो ये हनुमान जी से लड़ नहीं पाएंगे, इक्वली अगर लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आप इसके पास माया है, माया की विद्या, माया कर करके और उससे लड़े। तो जात न जाई प्रभंजन जाया, अब हनुमान जी उसके माया का पार नहीं पा रहे हैं, तो माया करके युद्ध कर रहा है, तो फिर भी हनुमान जी को नहीं पछाड़ पा रहे हैं। हनुमान जी के साथ में माया का युद्ध भी कुछ नहीं हो रहा, हनुमान जी को कुछ नहीं हो रहा। माया इधर उधर अलोप हो जाते, फिर आते हैं, फिर हनुमान जी पाते हैं मौका, फिर सड़काते हैं उसको, वो उसको सड़काते हैं, तो इसी तरह से युद्ध चल रहा है। तब मेघनाथ ने विचार किया ये तो बहुत लंबा युद्ध हो जाएगा लगता है। So what did he do? ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मास्त्र दिया था। जब सभी देवताओं को उसने पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम छोड़ दो इन सबको, तो उसके बदले में ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मास्त्र दिया था। तो उसके पास में ब्रह्मास्त्र इज लाइक कोई सुने तो बम तो नहीं बना। तो उसको दिया था। तो ब्रह्मास्त्र जो ये बड़ा भारी अस्त्र होता है। बाकी अस्त्र जो जैसे शिव जी का पशुपास्त्र अस्त्र होता है और भगवान विष्णु का चक्र होता है, तो ये बहुत मुश्किल से किसी को प्राप्त हो पाता है। अर्जुन को देखो पशुपास्त्र अस्त्र भगवान शिव ने कृपा करके दे दिया था, है? तो उस युद्ध में अर्जुन के पास ही केवल पशुपास्त्र अस्त्र था और किसी के पास नहीं था, शिव जी की कृपा से मिली थी। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी बहुत हाली प्रसन्न हो जाते हैं, कोई जाता है उनको प्रार्थना करता है, ब्रह्मा जी बोले ले तथास्तु, है? मतलब ब्रह्मा जी का भी बड़ा ही होगा ब्रह्मास्त्र ना, उनके ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो सब तो बड़ा ही चाहते हैं यार, छोटे मोटे भक्तों का बात क्या है, देवता लोग भी बड़ा ही चाहते हैं अपना,
तो ये दुनिया, ये संसार है, बच कर रहिए, जहाँ पर ये सब हो रहा है वहाँ से दूर रहिए, फंस जाओगे नहीं तो, नहीं तो यू एंड कृष्णा नहीं हो पाएगी, जो भी मैं बतला रहा था। यू चाहते यू और कृष्णा हो तो इन सब से बच कर रहे, राम राम चले बस। तो ब्रह्मास्त्र त्रयी संधा कपि मन कीन विचार। आप ब्रह्मास्त्र जब चला रहे हैं तो कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने विचार किया ये मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा, जो ना ब्रह्म अस्त्र मानव है तो महिमा मिटे अपार। मतलब क्या हनुमान जी सोच रहे हैं ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, मेरे को तो ये कुछ नहीं कर सकता, हनुमान जी को कुछ नहीं कर सकता, उसको वरदान है, सीता माता का भी वरदान है, देवता लोग भी वरदान देते, हनुमान जी का ये कुछ नहीं करता। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैं इसको स्वीकार नहीं करता है, मतलब ये मेरे ऊपर चलाएगा तो फिर ब्रह्मा जी का कोई मर्यादा नहीं रह जाएगा। तो ब्रह्मा जी के मान को रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो वो तो स्लिप हो जाता, वज्र देहे दानो दलन स्लिप हो जाता, हनुमान जी के शरीर से वो स्लिप हो जाता, कुछ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे को इसे स्वीकार करना है, तो बेचारा हनुमान जी बड़ा प्रेम से इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए आगे क्या, दिन का दिया जलाते चलो, राम नाम जपते चलो, दिन का दिया जलाते चलो, राम नाम जपते चलो, दिन का दिया तो इस तरह से हनुमान जी ने जब देखा कि उनके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं, और हनुमान जी ने विचार किया
कि इस ब्रह्मास्त्र को मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मा जी का कोई मर्यादा नहीं रह जाएगा, उसकी महिमा मिट जाएगी। पहला बात तो ये इस अस्त्र की महिमा मिट जाएगी, क्योंकि ये अस्त्र जब चलती है तो कुछ ना कुछ करती ही है? और ये ब्रह्मास्त्र को तो आप लोग जानते होंगे, भागवत कथा के शुरू में हमारे अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु के ऊपर चला दिया गया था, जब वो अपने माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में चला दिया गया था, है? तो इस ब्रह्मास्त्र से ऐसी कथा नहीं आती कि ब्रह्मास्त्र से कोई भी किसी को बचा सके, वो तो कृष्ण थे, हैं? तो कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र से बचा दिया था किनको? महाराज परीक्षित को, हैं? तो कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण एकमात्र रोक सकते हैं, महादेव जी रोक सकते हैं अगर चाहे तो, हैं? लेकिन यहाँ पर हनुमान जी भी रोक सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की विचार कुछ और है? कि ब्रह्मा एक इतने बड़े देवता है, सृष्टिकारक उसको बतलाया गया है। So he does all the creation, he does the creation of everything. Actually he creates the creator. And all the raw materials is supplied by Lord Narayan. So whatever raw materials is given, he uses that to assemble that. So he's like an engineer. And he does not create other things himself. भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं, भगवान के दृष्टि से केवल ये सब बन जाती है, पैदा हो जाती है? तो इसमें भगवान माँ विष्णु भी होते हैं, सदाशिव भी होते हैं, शक्तिमान पुरुष स्वयं लिंग रूपी महेश्वरा तस्मिन् लिंगे महाविष्णु जगतपति है। सो वो लिंग के भीतर सब होता है, लेकिन लिंग के भीतर कौन है? बोले महाविष्णु जगतपति है। सो महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं केवल, और सब क्रिएशन ये सब जो प्रधान रूप में होता, प्रधान होता, तो फिर ये प्रकृति के रूप में आ जाता। प्रधान जो होता है इनएक्टिव, उसको एक्टिव करने वाले भगवान स्वयं। तो एक्टिव करके तब किसको? ब्रह्मा जी को दे दिया, ले अब तू बना, है? समझा रहे? So that's how it happened. खैर जो भी हो, उसी ब्रह्मा की महिमा को रखने के लिए यहाँ पर हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे को ये काम करना पड़ेगा, इसको अपने ऊपर लेना। तो ब्रह्म बाण कपि कहूँ तही मारा, तो इस तरह से उस ब्रह्म बाण को कपि के ऊपर, मतलब हनुमान जी के ऊपर चला है। तो उसको आकर के लगा, तो हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए। और जब हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए, तब उसने क्या किया? नाग पास बांधव ले गए हो। तो फिर ये मेघनाथ क्या नहीं था इसके पास में, है? देखिए क्या नहीं था इसके पास में। तो इस तरह से नाग पास में उनको बांध करके और रावण के पास में लेकर के गए। तो यहाँ पर अब कथा जो महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो ये कथा सुना रहे हैं कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मार करके मूर्छित कर दिया, और फिर उसको नाग पास में बांध करके लेकर गया। तो माता पार्वती भगवान शिव की ओर देखती है, अच्छा रियली सचमुच ऐसा हुआ प्रभु, है? ऐसे कैसे हो सकता है? तब महादेव बोले, जा सुनाम जपी सुनो भवानी, है? तब महादेव जी समझ गए कि पार्वती माता का इच्छा क्या है? क्यों क्या पूछ रही है। तब शिव जी बोलते हैं, जा सुनाम जपी सुनो भवानी, की हे भवानी, भवानी माता पार्वती को कहते हैं, हे भवानी सुनो, भव बंधन कटी नर ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपने आप को बोले भव बंधन से काट देते हैं, इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। कैसे बोले? केवल उनके नाम से, केवल भगवान के नाम से, बोले राम कहा राम कहा राम कहा राम, राव गए सुरधाम। तो केवल नाम से ही महामंत्र जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। लोग काशी क्यों चले जाते हैं अंत समय में? तो बोले वहां पर भगवान शिव है। तो भगवान शिव इज एवरी टाइम चैंटिंग महामंत्र। वो महामंत्र हमारा महामंत्र नहीं, मैंने आपको बताया, वो महामंत्र केवल राम है। तो शिव जी क्या जपते हैं वहां पर? राम 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 राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,
रामचंद्र भगवान की जय। जासु नाम जपो सुनो भवानी की, जिसके नाम जाप से ही प्राणी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवान के नाम लेने से अंत में राम नाम जो आ गया तो यम यम व्यापी संब्रह्म तजेते अंते कलेवरम, भगवान को याद करते हुए अगर कोई प्राणी संसार को छोड़ता है, इंस्टेंटली ही इज एबल टू अचीव द, यू बाईपास एवरीथिंग। ओके, सो जब उस कथा में हम लोग जाएंगे नरक वाला है, तो बचने के लिए यही एक साधन है, राम 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 राम। बचने का साधन मैं पहले बतला रहा हूं, तो बाद में जब आपको कथा बतलाएगी तो आप डरना नहीं। आप क्या कहोगे, प्रभु आप चिंता नहीं करो, हमारे पास में राम नाम है। पूरा हाथ उठा करके कहना कि मेरे पास में राम नाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जासु नाम जपे सुनो भवानी। और ये बात कौन कह रहे हैं? संसार के हाईएस्ट पावर, ये भौतिक संसार का जो हाईएस्ट पावर है महादेव जी, वो कह रहे हैं। ही इज इन चार्ज ऑफ, इसलिए उसको भव कहते हैं। भव मतलब भौतिक संसार का जो है, पत्नी का नाम भवानी है। भवानी जो पूरे संसार की जो रक्षा करती है, देखभाल करती है। The highest power of the universe is saying, जासु नाम जपो सुनो भवानी, कि हे भवानी, हे पार्वती सुनो, जिसके केवल नाम से भव बंधन काट देता है प्राणी है। बोले तासु दूत के बंद तरुआ, उसके दूत को क्या बांधा जाता है, उसके मतलब दूत भक्त, मतलब आपका जीवन जब कृष्णमय हो जाएगा, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास जब हो जाएगा है, तो आपको कोई छू नहीं सकता उस समय। और उस समय आपको कोई छू नहीं सकता है, उस समय कोई छू नहीं सकता। फिर बतला रहा हूं कि जब वो नरक की कथा बतलाएंगे हम, तो आप बोलोगे मैं तो राम का हो गया भैया, मैं तो कृष्ण का हो गया है, ये यमदूत हमको नहीं छू सकते। लोग बहुत वरिड होते हैं यमदूत। अभी हाल ही किसी ने सवाल कर दिया, बोले जो कोई निकल करके चला जाता है शरीर में से तो क्या होता है, बोले उसका तो मैंने उसको बतलाया, ये पूरा एक क्लास लगेगी समझने के लिए है।
हाली से नहीं बतला, वो साधारण प्राणी की बात होगी, हैं? अगर आपने राम नाम को अपना लिया है जीवन में, हैं? शरणगत हो गए हैं भगवान को, आपके लिए वो अप्लीकेबल नहीं है। वो यमराज के पास भी आप पहुंचोगे, यमराज बोली जय सिया राम प्रभु, कैसे आना हुआ, आई गिव यू द टॉप लेवल कॉफी। अब आप बोलोगे प्रभु हम तो कॉफी पीते नहीं, तो वो बतलाएगा ये डीकेफ है। कहने का प्रयास हो आपका बड़ा सम्मान करे, एक गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है, वो आपका बड़ा सम्मान करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल एकमात्र जा सुनाम जपो सुनो भवानी, क्या बतला रहे हैं महादेव जी कि जिसके नाम का जाप जो अपने जीवन में उतार लिया, मतलब हरि कोई भी हो, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरे कृष्ण महामंत्र हो, राधा 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 भी हो, ये सब काम करेगा, ये सब आपके लिए काम करेगा। जो महादेव जी बोल रहे हैं यहाँ पर सब आपके लिए काम, तो वो उसके जिसके केवल नाम से बोले ऐसा हो, तो उसका जो दूत है, उसका जो सेवक है, भगवान का जो डिवोटी, उसका बोले कोई कुछ क्या बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और महादेव जी प्रूव कर रहे हैं कि जो नाम जाप करते हैं उनका तो होगा ही, लेकिन सिंसियरली जिसने अपने आप को भगवान को शरणगत कर दिया हो, और ये मैं कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं कि आप लक्ष्मी नारायण संप्रदाय में हो या आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहाँ पर आपको कृष्ण कॉन्शियस की बात बतला रहा हूं। जिसने अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस कर दिया हो भगवान को शरणगत करके, नाम का ये महिमा है कि आपका कुछ नहीं होगा, नाम का महिमा है तो है, बट आप तब भगवान के हो गए, जैसे हनुमान जी। करना केवल क्या पड़ेगा, आपको हनुमान जी की तरह भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, वॉक एज पे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। आपको कोई कुछ नहीं करता, तो बोले प्रभु कारज लगी कपि बंधवावा, तो बोले हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, महादेव जी कह रहे हैं, भगवान के कार्य करने के लिए कपि मतलब हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। अब बंधवा जब तक, अच्छा अब इसमें बहुत गहरा बात है, कितना वहां समय हो गया, इसमें बहुत गहरा बात है। गहरा बात यह है कि हनुमान जी अपने आप को बंधवाते नहीं तो कैसे जाते वहां भीतर सब देखने के लिए, ये बात यहाँ कही प्रभु कारज पर मैं बोल रहा हूं। तो प्रभु कारज करने के लिए हनुमान जी ने अपने, एक रीजन ये भी है, अपने आप को बंधवा लिया, भैया ले बांध ले मेरे को, ले चल भीतर, देखता हूं क्या क्या है तेरे पास में, तो इस तरह से कभी बंधन सुनी निशिचर धाय। अब सब बानर के बंधे जाने को जब सब सुना, बिकॉज सबको मार रहे थे, तो जितने निशिचर मतलब राक्षस यहाँ पर है, सब अब घर में से निकल निकल कर आ रहे हैं, सब जाकर हल गए थे भीतर, बोले हम लोग क्या भी मसल दी पटक दी उठाई। तो बंधा देख करके तब सब हाली पल्ला खोल खोल करके लोग देख रहे हैं, कौन है, बोले देखिए कौन। मेघनाथ बांध करके हनुमान जी को लेकर के जा रहे हैं, कौतुक लागी संभा सब आए, कौतुक देखने के लिए, मतलब कौतुक मतलब तमाशा है, तो तमाशा देखने के लिए सब निकले। और फिर दसमुख सभा देखी कपि जाई, देखो अब देखना आरंभ कर दिया हनुमान जी ने, क्या आरंभ कर दिया, दसमुख सभा, दसमुख मतलब रावण का सभा में अब उनको ले जाए। तो हनुमान जी इधर उधर ताक रहे हैं, देख रहे हैं सब कहाँ पर है, ये बम कहाँ रखा है, इस अस्त्र कहाँ है, सब देख रहे हैं। तो इस तरह से मुकुटि विलोकत सकल सबित देख ही प्रताप कपि मन शंका, जिमी ऐ गण महु गरुड़ असंका, है। तो हनुमान जी को यहाँ पर देख कर कितने बड़े बड़े योद्धा, एक से एक अस्त्र शस्त्र देख कर बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हनुमान जी बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, एक एक चीज को देखते हुए जा रहे हैं। कभी विलोकन दशानन बेहसी कहूँ दुर्बाद, सुतबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। तो रावण के पास जब पहुंचा तो देख करके रावण खिल्ली उड़ा दे, साले बांधे गए, बंद गए,
देख करके रावण क्या करे, बेहसी की न दुर्बाद, बेहसी मतलब हंस रहे हैं रावण, एक तो हंस रहे हैं और दूसरा दुर्बाद, दुर्बाद मतलब बुरा वचन बोल रहे हैं।